Okay, so chapter 3, The Girl Who Knew Everything. We will read this story. It is very interesting. So, everybody, listen it carefully and read it carefully. So, you can see some pictures are given here on this page. What are these? We will read it. If you had superpowers, what would you like to do? Suppose you get superpower. अगर आपके पास सुपर पावर आ जाए तो आप क्या करोगे? इन पिक्चर्स में से देखो, 4 पिक्चर्स हैं ये. चूज वन फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो. टेल द क्लास व्हाई यू हैव चूजन द पिक्चर. अगर आपके पास सुपर पावर आ जाए तो इन द फर्स्ट पिक्चर यू विल रीड ऑल द बुक्स कंटिन्यूसली. सारी बुक्स रीड कर लोगे. जैसे ये गर्ल के पास सुपर पावर है एंड शी इज रीडिंग ऑल द बुक्स. कितनी सारी बुक्स रीड कर ली इसने. एंड सेकेंड पिक्चर, और यू विल टीच इन अ क्लास. अगर आपके पास सुपर पावर आ जाए तो आप सब कुछ टीच कर लोगे, सब पढ़ा दोगे जो भी आपको कहा जाए. Next picture number 3, you will sing the song or you will make the song as all are playing the instruments and the boy who is having superpower is singing and instructing. वो सबको बता रहा है कि कैसे बजाना है ना. Or what you will do in the fourth picture, you can see the girl is standing here and talking with the animals. The sheep and goat is standing here and she is talking with them because she is having superpower. जैसे ही सुपर पावर है तो एनिमल से भी टॉक कर रही है. So क्या टॉकिंग कर रही है? Look at here. You wasted food again today. ये गर्ल इस एनिमल को कह रही है और एनिमल उसको आंसर कर रहा है, I told you to give me less food. And this goat, the doctor will come tomorrow. Girl is God को कह रही है and God is saying, but why? I told you I am well. So they are talking with each other. This girl is talking with animals because they all are having superpower. So children, if you get the superpower, what you want to do? इनमें से आप क्या करना पसंद करोगे? Yes, Avni. What would you like to do if you get superpower? Read books. You will read all the books. Okay. So Parth, आप क्या करेंगे? Yes, Parth. मैं books read करूँगा. आप भी books read करेंगे. Keshav Mathur, what you will do? Ma'am. Yes. Ma'am, instrument playing. You will play instruments. Okay. So you will get the superpower. You will do anything. जो super power होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना. चलो, we will start the lesson कि जो girl है जो knew everything वो क्या करती है. आज एक हम girl की story read करने वाले हैं जिसके पास भी super power है. ठीक है. So come on the next page everybody. Start the reading. सबकी फिंगर्स होनी चाहिए लाइन पर और मेरे साथ रीड करेंगे सब. ओके ओके स्टार्ट. Matilda Wormwood is only 5.5 years old, but she has already read all the books in the local library. Matilda, Matilda, WORMWOOD, Wormwood. It is a name of a girl. ये name है जैसे आप लोगों का name होता है. Same as Matilda Wormwood is a name of a girl. She is only 5.5 years old. वो only 5.5 years old की girl है और उसने क्या किया? She has already read all the books in the local library. Local library की सारी books उसने read कर ली. On the first day at school, Matilda's teacher Jennifer Honey, ये teacher का name है उसकी Jennifer Honey, is amazed to see how the little girl can add up big numbers faster than a computer. First day में स्कूल का जो first day था, Matilda's teacher, जो Matilda की teacher थी Jennifer Honey, is amazed. Amazed means क्या होता है children?
सरप्राइज होना, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज। वो टीचर अमेज्ड हो गई टू सी हाउ द लिटिल गर्ल इज एडिंग बिग नंबर्स फास्टर देन अ कंप्यूटर। वो उस मेटिल्डा को देखकर इतनी सरप्राइज हो गई कि वो गर्ल कैसे बिग बिग नंबर्स को इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रही थी, ऐड कर रही थी। जैसे मैं आपको ऐड करने के लिए बोलती हूँ तो आप लोग कितना टाइम लगा देते हो ऐड करने में, और आपको फास्ट एडिंग की मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे फास्ट फास्ट ऐड करते हैं माइंड एंड फिंगर्स में, है ना। तो सेम एज मैटिल्डा भी बहुत तेज फास्ट फास्ट एडिंग कर रही थी, कंप्यूटर से भी तेज। सो उसकी टीचर उसको देख के अमेज्ड हो गई। शी wants to find out more about the girl, but Matilda has a surprise for Miss Honey. Read the story to find out what it is. अब वो टीचर जानना चाहती थी कि मैटिल्डा में ऐसी क्या खास बात है, ठीक है। तो यही हम स्टोरी रीड करेंगे। केशव माथुर, पुट योर फिंगर ऑन द लाइन। सिर्फ ऐसे बैठ के स्टोरी सुननी नहीं है, सबको फिंगर्स रखनी है और मेरे साथ साथ रीड भी करना है। मैं सबके फेसेस देख रही हूँ, कौन रीड कर रहा है मेरे साथ और कौन साइलेंटली बैठा है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट नाउ विद मी। एट दिस पॉइंट मिस हनी could not resist the temptation of exploring। ये बहुत बड़ा एक वर्ड आया है, resist the temptation of exploring। जो मिस हनी थी वो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। रेसिस्ट मीन्स होता है रोकना। द टेम्पटेशन ऑफ एक्सप्लोरिंग स्टिल फर्दर द माइंड ऑफ दिस एस्टोनिशिंग चाइल्ड। एस्टोनिशिंग क्या होता है, सरप्राइजिंग चाइल्ड। जो मैटिल्डा थी वो एक एस्टोनिशिंग चाइल्ड थी बच्चों। एस्टोनिशिंग चाइल्ड क्या होता है, सरप्राइजिंगली, मतलब उसको देख करके सब जो थे सरप्राइज हो रहे थे कि वो कैसे इतनी फास्ट रीडिंग कर लेती है और कैसे वो इतनी फास्ट एडिंग भी कर लेती है। She knew that she ought to be paying some attention to the rest of the class, but she was altogether too excited to let the matter rest. This is we are talking about the teacher। जो टीचर थी she knew, उसको पता था कि उसको पूरी क्लास पे अटेंशन पे करना है ना, क्योंकि सब बच्चों को अटेंशन देना होता है। बट शी वॉज ऑल टुगेदर टू एक्साइटेड, लेकिन फिर भी वो बहुत एक्साइटेड थी किसके बारे में, मैटिल्डा के बारे में जानने के लिए कि वो मैटिल्डा इतनी सरप्राइजिंग चाइल्ड कैसे है। चलो नेक्स्ट लाइन। Well, she said, pretending to address the whole class, let us leave sums for the moment and see if any of you have begun to learn to spell. टीचर ने क्लास में बोला कि let us leave sums, अभी हम sums को छोड़ते हैं और हम क्या करते हैं, we will start the spelling start करते हैं कि किसको स्पेलिंग आती है। Hands up anyone who can spell cat। टीचर ने पूछा हैंड्स अप करो जिसको भी कैट की स्पेलिंग आती है। जैसे मैं आपसे क्लास में पूछती हूँ रेज योर हैंड्स फॉर गिविंग द आंसर फॉर द स्पेलिंग, सेम एज मैटिल्डा टीचर ने भी बोला हैंड्स अप एनीवन हु कैन स्पेल कैट, किसको कैट की स्पेलिंग आती है। सो 3 hands went up, 3 hands रेज हुए, 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया। कौन कौन थे वो, दे बिलोंग्ड टू लेवेंडर, लेवेंडर एक बॉय का नेम है। अ स्मॉल बॉय नेम्ड निगल, निगल भी एक बॉय का नेम है। एंड टू मैटिल्डा, और तीसरी गर्ल थी मैटिल्डा। इन तीनों ने हैंड रेज किया। स्पेल कैट निगल, मैम ने निगल से पूछा कैट की स्पेलिंग, निगल स्पेल्ड इट, निगल ने स्पेलिंग बता दी। Next line. Miss Honey now decided to ask a question that normally she would not have dreamed of asking the class on its first day. I wonder, she said, whether any of you 3 who know how to spell cat have learned how to read a whole group of words when they are strung together in a sentence.
मैम ने कहा कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप इतने छोटे बच्चे हो और आप लोगों को ये स्पेल एक साथ वर्ड को मिला के स्पेल करना आता है, ठीक है, ज्वाइन करनी आती है स्पेलिंग। आई हैव निगल सेड, निगल ने कहा यस मुझे आती है। सो हैव आई, लेवेंडर सेड, लेवेंडर ने कहा कि क्या मैं बोल सकता हूँ। Miss Honey went back to the blackboard and wrote with her white chalk the sentence. Miss Honey blackboard पे गई और उन्होंने चौक से क्या किया, एक सेंटेंस राइट किया। I have already begun to learn how to read long sentences. She had purposely made it difficult. मैम ने जान करके क्या किया, purposely means क्या होता है, knowingly, जान करके टीचर ने एक डिफिकल्ट सेंटेंस राइट किया। एंड शी न्यू दैट देयर वर प्रीशियस फ्यू 5 years old around who would be able to manage it. प्रीशियसली फ्यू का मतलब क्या होता है, वेरी फ्यू। मैम को पता था कि इतने छोटे बच्चे हैं 5 years के, तो बहुत कम ही होंगे जिनको ये सेंटेंस रीड करना आएगा। Can you tell me what that says, Nigel? She asked. टीचर ने निगल से पूछा कि आप इसको रीड करेंगे। That's too hard, निगल said. निगल ने क्या कहा कि मैम this is too hard. उसको रीड करना नहीं आ रहा था। लेवेंडर, मैम ने लेवेंडर से पूछा You will try. The first word is I, लेवेंडर said. लेवेंडर ने कहा कि फर्स्ट वर्ड इज आई। कैन एनी ऑफ यू रीड द होल सेंटेंस, मिस हनी आस्क्ड। मिस हनी ने, टीचर ने क्या पूछा क्लास में कि आप लोगों में से कोई रीड कर सकता है। कैन एनी ऑफ यू रीड द होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कौन रीड करेगा। वेटिंग फॉर द यस दैट शी फेल्ट सर्टेन वाज गोइंग टू कम फ्रॉम मेटिल्डा। और मैम जो थी वो टीचर वेट कर रही थी कि मैटिल्डा यस कब बोलेगी, क्योंकि उसको पता था कि मैटिल्डा जरूर रीड कर लेगी, है ना। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। आई होप एवरीबडी इज रीडिंग विद मी। सबके फिंगर्स है ना, किसी से भी मैं बीच में रीड करवा सकती हूँ। सो पे अटेंशन इन द क्लास एवरीबडी। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट लाइन इज यस मैटिल्डा सेड। You can see in this picture, Matilda is raising the hand और Matilda ने कहा कि yes, I can read. Go ahead, Miss Honey said. Miss Honey, who was the Miss Honey? कौन बताएगा? Who was the Miss Honey? कौन है Miss Honey यहाँ पर इस लेसन में? Yes, दिव्यांशी। दिव्यांशी, yes. Yes, Miss Honey is a teacher. So Miss Honey is saying Matilda, go ahead. मैम ने Matilda को कहा go ahead. Go ahead का मतलब होता है yes, आप बोलो। Matilda read the sentence without any hesitation at all. Matilda ने क्या किया, पूरा सेंटेंस रीड कर दिया without any hesitation. Without any hesitation का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंटली रीड कर दिया, बिना रुके और बिना रॉन्ग बोले, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। दैट रियली इज वेरी गुड इंडीड, मिस हनी सेड। मिस हनी ने कहा, क्या कहा टीचर ने, वेरी गुड, मेकिंग द अंडरस्टेटमेंट ऑफ हर लाइफ। यहाँ पे मेकिंग द अंडरस्टेटमेंट ऑफ हर लाइफ का मतलब है नॉट बीइंग एबल टू प्रेज मैटिल्डा इनफ। उन्होंने उसको बहुत प्रेज किया। हाउ मच कैन यू रीड मैटिल्डा। मैटिल्डा से उन्होंने पूछा कि तुम कितना रीड कर सकती हो। आई थिंक आई कैन रीड मोस्ट थिंग्स, मिस हनी, मैटिल्डा सेड। मैटिल्डा ने क्या कहा कि आई थिंक आई कैन रीड मोस्ट थिंग, कि मैं बहुत सारी चीजें रीड कर सकती हूँ, मैटिल्डा ने कहा। Although I am afraid I can't always understand the meanings. उसने कहा मैं रीड कर सकती हूँ, but I am afraid, मुझे डर लगता है
कि आई कांट ऑलवेज अंडरस्टैंड द मीनिंग, मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है कभी कभी। नेक्स्ट लाइन, मिस हनी गॉट टू हर फीट एंड वॉक्ड स्मार्टली आउट ऑफ द रूम। मिस हनी ने क्या किया, उस क्लास से बाहर चली गई, बट वॉज बैक इन 30 seconds कैरिंग अ थिक बुक। लेकिन एक 30 seconds में वो मैम वापस आई क्लास में, क्या लेकर के, कैरिंग अ थिक बुक, एक मोटी सी बुक लेके मैम क्लास में फिर से आई। Who was the ma'am? Miss Honey. She opened it at random and placed it on Matilda's desk. Somebody's mic is on, please off कर लें। किसका mic on हो गया है क्लास में? अपना mic off करके रखेंगे सब? Yes, pay attention in the class everybody, put your finger. Please off your mic everybody, don't disturb the class. Okay, so what happened here? Teacher came in the class carrying a thick book. She opened it at random. उन्होंने book को randomly open किया. Random means होता है without thinking. कोई भी page open कर दिया and placed it on Matilda's desk. और Matilda की desk पे रख दी book. ठीक है? Tavishi, you are not putting your finger on the book. Most of the students are only listening to me but not reading with me. फिंगर्स नहीं है आप लोगों की, आप लोग रीड भी नहीं कर रहे हो। मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रही हूँ बच्चों, मैं आपको रीडिंग सिखा रही हूँ। तो रीडिंग का मतलब होता है अपनी फिंगर्स रखना मैम के साथ और मैम के साथ रीड करना, ना कि सिर्फ बैठकर कहानी सुनना। ठीक है, तो सबको रीड करना है फिंगर्स रख के। जो लाइन मैं रीड कर रही हूँ उसी लाइन पे आपकी फिंगर्स भी होनी चाहिए, और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको भी बोलना है अपना माइक ऑफ करके। अंडरस्टैंड? यस, सो स्टार्ट। माइक ऑफ करो अपना सब। शी ओपनड इट एट रैंडम, रैंडम मीन्स होता है कोई भी पेज ओपन कर दिया, एंड प्लेस्ड इट ऑन मेटिल्डाज डेस्क। दिस इज अ बुक ऑफ ह्यूमरस पोएट्री। ह्यूमरस मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? फनी। एक फनी पोएट्री थी, वो बुक उन्होंने ओपन करी। शी सेड, सी इफ यू कैन रीड द वन अलाउड। टीचर ने कहा कि क्या तुम इसे, अलाउड मीन्स होता है जोर से बोल के रीड कर सकती हो। स्मूथली विदाउट अ पॉज एंड अ नाइस स्पीड मेटिल्डा बिगिन टू रीड। जैसे ही टीचर ने कहा, मेटिल्डा ने बहुत स्मूथली और बिना रुके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो भी नाइस स्पीड, स्पीड से, अच्छी स्पीड से स्टार्ट किया। ठीक है, क्या था वो रीडिंग? ये देखो मेटिल्डा ने क्या रीड किया था, ये लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। एन एपिक्योर डाइनिंग एट क्रू फाउंड अ रेदर लार्ज माउस इन हिज स्ट्यू, cried the waiter, don't shout and wave it about, or the rest will be waiting one too. ये लाइंस थी जो मेटिल्डा ने इजीली रीड कर दी। Several children saw the funny side of the rhyme and laughed. सारे चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? ये जो फनी लाइंस थी इनको सुन के लाफ कर रहे थे। मिस हनी सैड, डू यू नो व्हाट एन एपिक्योर इज? मेटिल्डा, इसमें एक वर्ड आया था एन एपिक्योर डाइनिंग एट क्रू। तो टीचर ने पूछा मेटिल्डा से, डू यू नो व्हाट एन एपिक्योर? एपिक्योर क्या होता है मेटिल्डा? It is someone who is dignity with his eating. Dignity with his eating का मतलब क्या होता है? Food of good, fond of good food. जिसको good food खाने का बहुत शौक होता है, जिसको बहुत अच्छा लगता है good food, वो होता है dignity with his eating. ये मतलब होता है epicure का। ये मेटिल्डा ने कहा। ठीक है,
कम ऑन द नेक्स्ट पेज एवरीबडी, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे सब और नेक्स्ट लाइन पे फिंगर रखेंगे। दैट इज करेक्ट मिस हनी सेड, मिस हनी ने कहा बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। एंड डू यू हैपन टू नो व्हाट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड? इट्स कॉल्ड द लाइमराइक। इस पोएट्री को क्या कहते हैं? लाइमराइक कहते हैं। लाइमराइक क्या होता है? अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, एक जो फनी पोएम होती है 5 लाइन्स की, उसको हम बोलते हैं लाइमराइक। पोएम्स आप रीड करते हो ना, कभी कभी फनी पोएम्स भी हम रीड करते हैं, तो 5 लाइन्स की जो फनी पोएम होती है उसको हम बोलते हैं लाइमराइक। Matilda said, "That's lovely one. It's so funny." It's a famous one, Miss Honey said. Miss Honey ने कहा कि ये बहुत famous poem है। Picking up the book and returning to her table in front of the class. मैम ने क्या किया? टीचर ने को उठाया, picking up means उठाना, and returning to her table, और अपनी टेबल पे फिर से चली गई। A witty limerick is very hard to write. माइक ऑन हो गया है फिर से क्लास में, आप लोगों को पता नहीं ऑन हो जाता है तो। दिव्यांशी चौधरी अपना माइक ऑफ करो। ऑन कैसे हो गया बीच में? परिधि चांगेड़, you also don't disturb the class in between. Okay, a witty limerick is very hard to write, she added. Witty क्या होता है? Witty होता है clever। एक clever सी जो lines हैं, 5 lines जो limerick हमने read की थी, वो बहुत hard होती हैं to write. They took easy, but they most certainly are not. Easy दिखती हैं, but वो लिखने में easy नहीं होती है। I know, Matilda said. Matilda ने कहा, yes ma'am, I know, मुझे पता है। I have tried quite a few times, but mine are never any good. Matilda ने कहा, मैंने बहुत बार ट्राई किया है राइट करने का, बट मुझसे अच्छे से नहीं लिखी गई। You have you? Miss Honey said. Miss Honey ने कहा कि तुमने राइट की है। More startled than ever. Startled का मतलब है बहुत सरप्राइज होना। जैसे ही मैटिल्डा ने कहा कि मैंने भी ट्राई की है पोएम राइट करने की, तो मिस हनी बहुत सरप्राइज हो गई और उससे पूछा कि तुमने भी लिखी है। Well, Matilda, I would very much like to hear one of these limericks you say you have written. Matilda ने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई पोएम को वेरी मच लाइक सुनना चाहती हूँ। ठीक है, वेरी मच लाइक टू हियर। कुड यू ट्राई टू रिमेम्बर वन फॉर अस? कि क्या तुम अपनी कोई एक पोएम मुझे सुनाओगी? वेल, Matilda said, hesitating means without feeling sure or confident. I have actually been trying to make up one about you, Miss Honey, while we have been sitting here. तो मैटिल्डा ने क्या कहा? I have actually been trying. मैं एक ट्राई करती हूँ सुनाने की। Next line is, about me, Miss Honey cried. मिस हनी ने कहा मेरे बारे में। Yes, well, we have certainly got to hear that one, haven't we? I don't think I want to say it, Miss Honey. Please tell it, Miss Honey said. Miss Honey ने कहा please सुनाओ। I promise I wouldn't mind. क्योंकि जो मैटिल्डा थी वो अपनी टीचर के बारे में पोएम सुनाने वाली थी, तो मिस हनी बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि यस सुनाओ। आई प्रॉमिस आई वुडंट माइंड, कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं माइंड नहीं करूंगी। ठीक है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि जो मैटिल्डा है वो पोएम सुना रही है, सब बच्चे भी सुन रहे हैं एंड टीचर इज स्टैंडिंग हियर, टीचर भी बहुत ध्यान से सुन रही है। ठीक है, ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज।
I think you will miss honey because I have to use your first name to make things rhyme, and that's why I don't want to say it. मिस हनी को मैटिल्डा ने कहा कि आई थिंक आप माइंड करोगे शायद, क्योंकि जो मेरी पोएम है उसका जो आपका फर्स्ट नेम से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? हाउ डू यू नो माई फर्स्ट नेम? मिस हनी आस्क्ड। मिस हनी ने कहा कि तुमको कैसे पता मेरा फर्स्ट नेम? आई हियर्ड अनदर टीचर कॉलिंग यू बाय इट जस्ट बिफोर वी केम इन, मैटिल्डा सेड। मैटिल्डा ने कहा जब हम क्लास में आ रहे थे तो हमने दूसरी टीचर से आपका नेम बोलते हुए सुना था। शी कॉल्ड यू जैनी। वो क्या उसने नेम बताया कि वो आपको क्या कह रही थी बाकी टीचर्स? जैनी बुला रही थी। आई इंसिस्ट अपॉन हियरिंग दिस लाइम राइट, मिस हनी सेड, स्माइलिंग वन ऑफ हर रेयर स्माइल्स। रेयर मीन्स नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन। स्टैंड अप एंड रिसाइट इट। मैम ने कहा स्टैंड अप और स्टार्ट कर दो। सो दैट्स इट चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड अप टू हियर ओनली। अब जो मैटिल्डा ने पोएम सुनाई थी वो हम कल रीड करेंगे, ओके? बिकॉज आवर क्लास टाइम इज गोइंग टू ओवर, सो वी विल रीड दिस लेसन टुमारो और इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास, ओके? तो हम ऐसा आगे रीड कर नो बाय एक काम करते हैं, हम आगे इसको रीड करते हैं, बट बीच में क्लास ऑफ हो सकती है कहीं भी, तो हम वहां से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम रीड करते हैं। रेल्यूकेटेंटली इसका मतलब होता है फीलिंग अनश्योर और नर्वस। नर्वस होकर के मैटिल्डा स्टूड अप, मैटिल्डा नर्वस होकर स्टैंड हुई, एंड वेरी स्लोली वेरी नर्वसली शी रिसाइटेड हर लाइम राइक, और उसने अपनी लाइम राइक अपनी पोएम स्टार्ट कर दी। क्या पोएम उसने स्टार्ट की? रीड करेंगे सब मेरे साथ। द थिंग वी ऑल आस्क अबाउट जेनी is surely there cannot be many young girls in the place with so